حضرت امیر حمزہ سید الشہداء جو پیچھے اس میں دو صحابہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جیش، اور باقی یہ دیوار دیکھے چھوٹی، ادھر 67 صحابہ ہے سیرے کے اندر، 67 صحابہ ادھر ہیں، سب یہ جو پہلی ہے حضرت امیر حمزہ کیا سید الشہداء حضور وسلم کے جو چچا جان تھے، اور اس کے پیچھے جو بڑی ہے بڑے پتھر والے اس میں دو صحابہ ہیں، مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جیش، 3 بار کل شریف اور 1 بار اعظم شریف پڑھ لیں۔ اپنے کو نہیں جانا ہے اس کے اوپر کسی کو، ہاں اس کے اوپر نہیں جانا، یہ جبل عہد ہے سارا، 7.5 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، 7.5 کلومیٹر کا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عہد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں عہد سے محبت کرتا ہوں، عہد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں عہد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جنتی پہاڑ ہے، قیامت والے دن یہ جنت کے دروازے پر ہوگا۔ یہ جو ہمارے پیچھے پہاڑی ہے اسے جبل رماد کہتے ہیں، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، رماد تیر اندازوں والی پہاڑی، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو بہت قابل تیر انداز سے نشانہ باز تھے ان کو ادھر مقرر کیا، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں آپ نے نیچے نہیں آنا، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا جنگ ختم ہو گئی ہے، بعض علماء کہتے تھے مال غنیمت کے لیے نہیں، جن صحابہ نے اپنی جائیدادیں لٹا دی تو مال غنیمت کے لیے نیچے کیوں آتے، اپنا گھر بار لٹا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ کو مزار دکھایا نا میں نے، مکے کے سب سے امیر ترین صحابی تھے، جو سوٹ جوڑا یہ پہنتے تھے مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا، جو خوشبو یہ لگاتے تھے مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا۔ ایسے صحابیوں کے بارے میں کہا جائے کہ مال غنیمت کے لیے آئے تھے، یہ غلط ہوتا ہے، کیسے کہتے تھے کہ مال غنیمت؟ جب صحابہ نے دیکھا جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ چکے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، اب جنگ ہونی ہی نہیں ہے، تو صحابہ میں اختلاف ہو کے جو حضور کا فرمان تھا وہ جنگ تک تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے آ جانا نیچے، کچھ نے کہا نہیں، حضور نے کہا تھا جب تک آپ کو نیچے نہ بلایا جائے۔ اس اختلافات میں 40 صحابہ نیچے آئے، حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ طاق میں بیٹھے تھے، زین و فتین کمانڈر تھے اس ٹائم، کفار کے کمانڈر جو تھے ابو سفیان اور خالد بن ولید تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتر گئے نیچے تو انہوں نے اچانک اٹیک کر دے، وہ گھوڑوں پر تھے، جو صحابہ تھے وہ خالی ہاتھ تھے، جب بندہ جنگ ختم ہو جائے تو ہتھیار رکھ ہی دیتا ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا تو صحابہ کو چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو انہیں فتح ہی مل گئی تھی، کافر تو بھاگ گئے تھے۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس میں ہمارے 10 صحابہ کھڑے رہے اور انہوں نے پہلے ان 10 صحابہ کو شہید کیا تیر اندازوں کو، پھر انہوں نے نیچے آئے، پھر حملہ کیا، ادھر 10 صحابہ کا خون لگا ہوا، اور اسی پہاڑی سے ایک بدبخت نے پتھر مارا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، جو جنگی لباس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دب گیا، جب نکالا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا جا کے اس کو دفن ڈالا، تو صحابی نے وہ خون پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی سے کہ آپ نے خون کدھر دفن کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے وہاں دفن کیا ہے میں نے، تو اس سے قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ نے کہا جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو، جہنم کی آگ حرام ہو۔ اور یہ پہاڑ ہے نا جو حضور نے کہا تھا نا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جب وقت آیا تو اس نے اپنے محبت کا فرض ادا کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو صحابہ لے کر گئے، اس نے ایسے بائیں کھولی جسے ایک دوست کے لیے کھولتا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، ایک بیڈ بنا ہوا ہے، پرانے ویڈیو میں نا بیڈ بنا ہوا ہے، اندر بندہ سو سکتا ہے آرام سے۔ اب تو حکومت نے بند کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے بند کر دیا۔ اس پہاڑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر بنا دیا، چھپا لیا، اور اسی غار کے اوپر ایک صحابی تھا سعد بن ابی وقاص، جو تیر چلا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیر دے رہے تھے، اور اس دن ہمارے نبی نے محبت کا قانون ہی بدل دیا۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے، کوئی بندہ ہو کسی ملک کا مسلمانوں کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون کیسے بدلا؟ تیر دیتے کہتے ساتھ میرے ماں باپ تم پر قربان تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان تیر چلاتے جاؤ۔ جنگ ختم ہوگی، سب کفار بھاگ گئے، سعد بن ابی وقاص پھر بھی تیر چلا رہے ہیں،
साहबा ने कहा भाई कुफार तो भाग गए हैं। उन्होंने कहा हजूर तीर दे रहे हैं, मैं बस कैसे करूं, ये देते रहे मैं क़यामत तक चलाता रहूं। एक साबित है अबू कतादा, ये इश्क होता है, मोहब्बत क्या होती है, कुदरत का कानून है, कोई चीज़ गर्म हो खुद हाथ पीछे आ जाता है, छुरी लेके हाथ पीछे आ जाता है। जब हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं एक तीर, खुफिया तीर, गुमनाम तीर आ रहा था, अगर मैं हाथ करता तो हजूर को लग जाता, मैंने चेहरा आगे कर दिया तो वो आँख में लग गया और आँख निकल गई। उन्हें पता था तीर आ रहा है, उन्होंने खुद चेहरा आगे कर दिया हजूर के सामने मुझे लग जाए, तो आँख में लगा, आँख निकल गई। अब जंग ख़त्म हो गई, बड़े अदब से या रसूलल्लाह मुझे तीर लगा, मेरी आँख निकल गई। हजूर ने कहा कतादा ये बताओ आपको आँख मरा दूँ या जन्नत दे दूँ। हज़रत कतादा ने कहा मैं आँख क्या करूँगा या रसूल मुझे जन्नत ही अता कर दो। हजूर ने कहा कतादा जा जन्नत तेरी हो गई। अब उसने दलीलें नहीं मांगी क्योंकि वो साहबी थे, उन्हें पता था कि हजूर ने कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो गए चंद कदम, फिर आगे उनके मांगने का तरीका देखे, जहानत देखे उनकी, या रसूल अल्लाह जन्नत में सब दो आँखें वाले होंगे, एक आँख वाला भी होगा। आपने कहा कतादा उधर तो दो आँख वाले होंगे। कहा या रसूल अल्लाह आप ऐसे करें जन्नत वापस ले लें, आँख ही बना दें, मैं तो अजीब लगूंगा फिर जन्नत में। हजूर मुस्कुराए, कहा कतादा जो चीज़ मैंने एक दफ़ा दी है फिर वापस कभी नहीं, जन्नत भी दे दी आँख भी तेरी बना दूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाभ दहन लगाया और हज़रत अबू कतादा कहते हैं सारी ज़िंदगी उस आँख की नज़र ऐसी थी, दूसरे की कम हो गई, उसकी नज़र बहुत तेज़ रही, आज तक मैंने महसूस ही नहीं किया कि उसमें कोई ख़राबी आई है। ये इश्क था, अगर साहबा ने कुर्बानियाँ दी, हमारे नबी ने भी उन्हें ऐसे इनामात दिए, ऐसे इनामात दिए कि दुनिया रश करती है। दुनिया देखें, एक बार नाम लिया जाए मदीने का लोग तड़प उठते हैं। हजूर तो वराल वरा है, हजूर कह रहे हैं साथ में नबी वकास को, साथ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान तीर चलाते। हम कहते हैं या रसूलल्लाह हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान। हजूर ने पैमाना ही बदल दिया, कानून ही बदल दिया। एक साहबा थी हजरत तुम्हें मारा, वो एक औरत थी, वो मर्द नहीं, हजरत तुम्हें मारा साहबा थी। जब उन्हें पता लगा हजूर पर हमला हो रहा है तो उन्होंने छोड़ दी मदीने की बस्ती, तो बच्चे थे वो भी साथ ले, आओ मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, हजूर पे हमला हो रहा हो, तुम घर बैठे हो। बच्चे थे, कम उम्र थे, ले आई, अपने शोर को भी ले आई, जबकि हजूर ने उन्हें उधर बिठाया हुआ था, जो बीमार होते थे जंग में नहीं लाते थे, ले आई। तो हज़रत उम्मे अमारा ने हजूर सल्लम का 21 मरतबा दफा किया, पूरी जंग में 70 हमले हुए। कितने? एक औरत ने हजूर सल्लम ने बाद में फरमाया मेरा दफ़ा अबू दुजाना ने भी किया, अबू कतादा ने भी किया, साद बिन नबी वकास ने भी किया, मसअब बिन उमैर ने भी किया, अब्दुल्लाह बिन जैश ने भी किया, जो उम्मे अमारा ने किया सब ने एक एक दो दो बार किया, उम्मे अमारा ने 21 बार किया। 80 जख्म खाए, इतना इश्क रसूल था, हमें एक जख्म लगे हम चल नहीं सकते, 80 जख्म खा कर भी वो चट्टान की तरह सामने खड़े रही, चट्टान की तरह सामने। ऐसे हम तक दीन नहीं पहुँचा, दीन के लिए बहुत कुर्बानी दी सहाबा कराम। 6 दिन उनके घर में खाना नहीं पकते थे। जो खालिद बिन वलीद जो ग़ज़वे ओहद में हजूर के खिलाफ आए थे, जब मुसलमान हुए उनका इश्क इतना सख्त हो गया, इतना बढ़ गया, गहरा हो गया। सामने 1 लाख का लश्कर होता था, खालिद बिन वलीद 3000 बंदे ले जाता था, काट के फेंक देता था। सुभान अल्लाह। जो जंग मोता है हज़रत खालिद बिन वलीद की पहली जंग, इस्लाम में पहली जंग मोता खालिद बिन वलीद की। हज़रत सल्लम ने कहा उसमें सिपहसालार खालिद बिन वलीद नहीं थे, पहले जो थे ज़ैद बिन हारिस थे। आपने फरमाया जब ये शहीद हो जाएं तो फिर हज़रत जाफ़र बिन त्यार झंडा उठाए, जब जाफ़र बिन त्यार शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवा झंडा उठाए, इसके बाद कोई भी उठा सकता है। हजूर मस्जिद नबी में बैठ के 500 किलोमीटर दूर जंग देख के बता रहे हैं ज़ैद बिन हारिस शहीद हो गए, अब झंडा जाफ़र बिन त्यार के हाथों में है। मस्जिद नबी में बैठ के बता रहे हैं जाफ़र बिन त्यार के दोनों बाजू कट के मुँह में झंडा लिए बैठ खड़े हैं, अब वो भी शहीद हो गए, अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवा उठा रहे हैं। फिर जब हज़रत खालिद बिन वलीद को साहबा ने कहा ना अब आप उठाओ झंडा, तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने झंडा उठाया ना, रसूल के चेहरे में मुस्कुराहट है, जलाल है। हाँ, अब अल्लाह ने अपनी तलवार निकाल ली है, अब अल्लाह ने अपनी सैफुल्लाह का खिताब खालिद बिन वलीद को हमारे नबी ने दिया था। और खालिद बिन वलीद जिस जंग में जाते थे वो खुद डर के मारे भाग जाते थे। रोमियो ने कहा खालिद बिन वलीद ठीक है, उन्होंने तो मुकाबला किया, तू तो जानता है कि 1 लाख का मुकाबला 3000 से कभी हो ही नहीं सकता, तू फिर भी झंडा लिए खड़ा है। खालिद बिन वलीद को कहा अगर आपको दाने गंदम को चाहिए
आप लो देन शेन और जाओ। खालिद बिन वलीद ने कहा गुस्से में मुझे आपका खून चाहिए, और उन्होंने ऐसी जंग लड़ी 3000 से 1 लाख को काट के फेंक दिया। 3000 से 3000 का मुकाबला 1 लाख से हो ही नहीं सकता। आजकल टेक्नोलॉजी की जंगें हैं, एक मुल्क हार भी जाए ना, वो कहता जी उनके जहाज बहुत खास थे। उस टाइम तो 3000 का 1 लाख से मुकाबला नामुमकिन था। फिर भी हज़रत खालिद बिन वलीद का इश्क इतना गहरा हुआ, जो कदम उठा देते थे दिफा के लिए, वो तादाद देखते ही नहीं थे, वो तादाद देखते नहीं थे, ना ही वो मौत से डरते थे। जब उन्हें गुस्ल दिया गया तो उनके जिस्म में को इतनी बलश्त कहते हैं उंगली जितनी, इतनी जगह भी नहीं थी कि वो जख्म से ना हो। तीर नेज़ा लगा हुई था, तलवार लगी हुई थी। ये बात उनका शुरू हुआ था। हज़रत हिंदा जो उस टाइम हज़रत अमीर हमजा को शहीद करवाती है, बाद में उन्होंने भी अपना सब कुछ इस्लाम की खातिर उठा दिया, मुसलमान हो गए। हज़रत अमीर हमजा हज़रत के चचा थे। जब सब की खबर आई या रसूलल्लाह वो साहब शहीद हुआ, वो शहीद हुआ, आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उनकी खबर आई, तरीक़ हुआ, आप सल्लम के आंसू बरस रहे थे, दाढ़ी मुबारक भीगी, आप रो रहे थे। आपको वो वक्त याद आ गया जब अबू जहल ने आप सल्लम को ज़ख्मी किया। तो अमीर हमजा शिकार पे थे, घर आए, उनकी बीवी ने कहा तेरे भतीजे को अबू जहल मार के और तू शिकार पे था। उन्होंने गुस्से में उठाया भाला, ये वो पंचायत में बैठा था, नवाब था, चौधरी था, आपने दे रखा। उन्होंने बगैर डर के उसका सर फाड़ दिया। आए कहा भतीजे अब तू खुश हो जा, मैं तेरा बदला ले लिया है। आपने कहा चाचा मैं तब खुश होऊंगा जब तू मेरा कलमा पढ़ लेगा। उन्होंने कहा जा, मैंने कलमा भी पढ़ लिया या रसूलल्लाह। फिर उन्होंने कभी भी आप सल्लम के साथ यूं खड़े रहे, कभी भी पीछे नहीं हटे, कभी भी। मुसअब बिन उमैर जब शहीद हुए, इतने अमीर सहाबा थे, जब गुस्ल दिया गया, कफन की बारी आई, तो यकीन करें जब मुँह चेहरा ढांपते थे तो टांगें नंगी जाती थी, टांगें ढांपते थे तो चेहरा नंगा हो जाता था। रसूलुल्लाह रोए। वो मुसअब बिन उमैर जिस पे पूरा मक्का रश करता था, आज उसका कफन पूरा नहीं हो रहा। आपने कहा इसका चेहरा ढांप दो, इसके टांगों मुबारक पे ना घास या पत्ते डाल दो। ये सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी। जाज कराम से अहम ऐलान है, ये वो पहाड़ी है जिस पर हमारा 10 सहाबा शहीद हुए थे। अब जो इश्क का ताल्लुक है वो अदब से है, इश्क का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक अदब से है। अब कोई बंदा आपका ये हाथ में इधर कट लगा दे, आप कोई फ़ायदा नहीं है। 10 सहाबा शहीद हुए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध इधर आते थे हमजा के मज़ार पे, एक दफ़ा साबित कर दो हमारे नबी इस पे नहीं जाना। क्यों? गवर्नर मदीना नीचे पड़े हैं। हज़रत हमजा गवर्नर मदीना थे, क्या थे? गवर्नर। और जो बंदा चाहे कि मैं मदीना बार बार आऊँ, वो इनसे इजाज़त ले। किसी मुल्क में जाओ गवर्नर की इजाज़त लाजमी होती है। जो चाहे कि मैं बार बार आऊँ, वो इजाज़त गवर्नर से लेगा तो आएगा। जब बंदा उसकी बेअदबी करे, चंद सेल्फियाँ, पूरा मदीना शरीफ पड़ा है सेल्फियों के लिए। इन्हें बताता कोई नहीं है कि 10 सहाबा इधर शहीद हुए थे, ये गम वाली जगह है। 70 सहाबा नीचे पड़े हैं। सहाबा का कितना मकाम है, लाखों औलिया खड़े हैं, उनकी खाक के बराबर नहीं है। वो तब गोश हों तो ये मकाम है। चंद फोटो उठाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, मस्करा करते हैं। एक बार तो हाजी है, सिगरेट पी रहे थे। अब आपका इधर की ज़रूरत होगी, अब लैन में चले साथ, अब आपको बाकी करवाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है आपकी नमाज मस्जिद नबवी में हो। आप इधर जिस मकसद के लिए आए हैं, नमाज़ें तो पाकिस्तान में भी होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, ऐसी नमाज आपको फिर नसीब नहीं होगी। और जाज कराम हम इसलिए जल्दी ले जाते हैं ताकि आपकी नमाज मस्जिद नबी के अंदर ही हो। और अब साथ चलना है, कोई गुम ना हो इधर उधर। चले आगे चले। ये वाली मस्जिद का क्या है? ये मस्जिद छोटा ओहद भी है, मस्जिद ओहद भी है। इसमें नवाफिल नहीं होते, बस